پاک رمضان المبارک میں نزول کے متعلق امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا. ماہ رمضان کی ایک رات لائلۃ القدر ہے، اسی رات کو نازل فرمایا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. پاک رمضان المبارک میں نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا. ماہ رمضان کی ایک رات لائلۃ القدر ہے، اسی رات کو نازل فرمایا. کہ لائلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں اللہ نے اتارا اور پھر وہاں سے پورے 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول کی تھوڑا تھوڑا کر کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. نزول قرآن کی اس رات کے متعلق خود رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر اسی ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے سے بھی افضل مہینہ ہے. اگر یہ میسر آ جائے تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ بڑی فضیلت والی رات ہے. دیگر آسمانی کتابوں کی فضیلت کے متعلق بھی بہت سی روایت آئی ہے. مثلا طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے رمضان المبارک کی پہلے تاریخ کو نازل ہوئی. کہ قرآن مجید تو نازل ہوا، یعنی لائلۃ القدر والی رات کو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا میں نازل فرما دی، بیت العزت میں نازل فرمایا. پھر اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی میں تھوڑے تھوڑے کر کے ان کے اوپر نازل ہوتے رہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کی پہلی رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے. تورات 6 رمضان کو نازل ہوئے اور انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. قرآن پاک 24 رمضان کو نازل ہوا. یہ تفسیری روایت سے معلوم ہے کہ بہرحال رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمایا، یعنی قرآن مجید کی اتنی بڑی نعمت ہے. اس ماہ مبارک کو قرآن پاک کے ساتھ بطور یادگار خصوصی لگاؤ ہے. اس لیے حکم ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. رات کو ختم قرآن اور صبح صادق کو سحر کی وقت اٹھ کے قرآن مجید کا تلاوت کرنا، ظہر کی نماز کی بعد، عصر کی بعد اس قسم سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا مقصد یہ کہ اس سے نصیحت پکڑی جائے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی کہ محض تلاوت اس کی مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ کہ اس سے نصیحت پکڑی جائے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، کیا نصیحتیں فرمایا، اور اس کی اصولوں کی پیروی کی جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصد نزول قرآن محض تلفظ نہیں ہے، محض یہ تلفظ نہیں. مقصد از نزول قرآن محض تلفظ نہیں.
अगरचे जमाने महज तिलावत भी गनीमत है, लोग तिलावत ही नहीं करते कुरान मजीद। तो ये सिर्फ इसका तलफ़ुज़ मकसद नहीं है, इसकी उसूल, इसके ऊपर अमल करना असल मकसद है। लेकिन इस जमाना में तो लोग कुरान मजीद भी बड़े मुश्किल से तलावत कर रहे होती हैं, तो ये भी बड़े गनीमत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कुरान पाक का एक एक हुरूफ पढ़ने से 10-10 नेकियां हैं। एक एक हुरूफ पढ़ने से 10-10 नेकियां हासिल होती हैं। फरमाया जब कोई शख्स खुलूस दिल के साथ 3 हुरूफ अलिफ लाम मीम, ये 3 हुरूफ पढ़े, बल्कि अलिफ हरफुन व लाम हरफुन व बीम हरफुन, तो अलीफ एक हरूफ, लाम एक हरूफ, बीम एक हरूफ, तो ये 30 नेकियों का मुस्तहिक हो जाता है। अल्लाह ताला की कलाम की इस कदर, अल्लाह ताला की कलाम इस कदर बरकत है कि शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में लिखा है कि कुरान पाक के अलावा बाकी जो भी कलाम या औराद हैं, उन्हें बेगारे समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। कलाम पाक के अलावा बेगारे समझे पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं। सिर्फ एक कलाम पाक है, एक ऐसा कलाम है जिसे समझकर या बेसमझे हर हालत में पढ़ने से फायदा ही फायदा है। इसके लिए सिर्फ ईमान और नियत सालिया की जरूरत है। कुरान 6 नंबर, ये 5वां नंबर तलावत कुरान के बारे में इसकी अहमियत के मुताल्लिक बताया कि कुरान हमेशा तिलावत करनी चाहिए, हर वक्त। रमजान मुबारक की कम से कम, ज्यादा नहीं तो भाई 3 खत्म, पहले अशरा में 1 खत्म, दूसरे अशरा में 1 खत्म, तीसरे अशरा में 1 खत्म, नहीं तो कम से कम पूरे रमजान में तो एक कुरान मजीद का खत्म करो। फरमाया कुरान ये जरिया हिदायत है। 6 नंबर में कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, कुरान ये लोगों के लिए हिदायत का सामान है, हिदायत का जरिया है। ये ऐसी हिदायत जो इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अय अल्लाह मुझे सीधे राह दिखा दीजिए, अय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला और हमें सीधा रास्ता दिखा। तो सीधा रास्ता वही है जो कुरान पाक दिखाता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, नमाज में हर रकात के शुरू में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फिर हम दुआ में अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे राह दिखा दे, ये अल्लाह हमें तो सीधे राह पर चला। तो कुरान मजीद ऐसी एक सीधा राह है, सीधे रास्ता वो दिखाता है, यही कुरान मजीद है। यानी इस तरह एतकाद रखो, इस तरह अमल करो और इस तरह के अखलाक पैदा करो, अपने माशराती, अपने माशी मसाइल को इस तरह हल करो कि कुरान पाक मतन है और रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसकी शरह है। ये कुरान पाक को खोलकर बयान करती है। इमाम शाफी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह फरमाते कि हर सही हदीस कुरान पाक की शरह है। हर सही हदीस कुरान पाक की सही हदीस है। सही हदीस के बगैर कुरान पाक का समझना मुमकिन नहीं।
जैसे दीगर फरगजिया है, चक्रनबी है, ये जितने भी लोग ये महज इसलिए हदीस का इनकार करते हैं कि ये अपने ही मर्जी से कुरान की तर्जुमा करे। तो हदीस के बगैर इंसान कुरान की मंजिल को नहीं पा सकता। जब भी दुश्वारी पेश आए तो कुरान पाक की तरफ रुजू करो। हल में मुद्दकिर, कौन है जो उससे नसीहत पकड़े, खुद मुफ्ती ना बन बैठो। हल में मुद्दकिर, बल्कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें खुद इल्म नहीं तो अहले इल्म के पास जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम उठाकर कहा कि कसम है उस जात पाक की जिसका कोई शरीक नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने इस दौर में अगर मुझे मालूम हो जाए कि फला शख्स मुझसे ज्यादा कुरान करीम जानने वाला है तो मैं सवारी पर सवार होकर उसके पास जाऊं, खा मुझे कितना ही लंबा सफर करना पड़े। साहबा किराम ने एक एक हदीस की खातिर 2-2 माह तक सफर किया, एक एक मसला मालूम करने के लिए तवील सफर की सोबतें बर्दाश्त की, मगर इस मकसद से हटकर कोई दूसरा मफाद हासिल नहीं किया। हत्ता कि वहां से खाना तक नहीं खाया, नाश्ता तक नहीं किया, और हुसूल मकसद के बाद फौरन वापस लौट गए, डर था कि ऐसा करने से कहीं हमारे अजर में कमी ना वाक़ हो जाए। तो एक एक हदीस को हासिल करने के लिए, एक एक मसले के लिए कितने लंबी लंबी सफर किया करते थे। 2-2 माह की सफर हुआ करते थे। उलमा किराम, मुफस्सिर किराम, मुफ्तियान किराम उलमा को इतने मोहताज थे। खरासान से हिजाज या हिजाज से खरासान तक हजारों मील की मुसाफत महज किसी आयात की तशरीह मालूम करने के लिए तय करते थे, किसी आयात की तशरीह मालूम करने के लिए। आज मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक आयत पढ़ ली और पढ़कर उसके बाद तफसीर शुरू कर देते हैं, जो कुरान से कभी वास्ता नहीं रहा, और अपने आप को मुफस्सिर कुरान कहना शुरू कर देते। देखकर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आती और खुद अपने आप को कुरान मजीद की मुफस्सिर कहना शुरू कर देते। है अफसोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने तफसीर तर्जुमानुल कुरान को मौलवी मोहम्मद दीन कंदारी के नाम से मालूम किया। वजह यह थी कि मौलवी साहब ने कुरान पाक की चंद आयात तफसीर समझने के लिए कंदार से रांची तक का सफर अख्तियार किया। उन्होंने मौलाना के पर्चे अल हिलाल में बाज़ आयात की तफसीर पढ़ी तो कुछ शुबा पैदा हुआ, जिसे दूर करने के लिए आपने इतना तवील सफर किया कि मौलाना इन दिनों राजी में नजरबंद थे। उस शख्स ने अपना मसला हल करने के बाद मस्जिद में नमाज अदा की और चलता बना। मौलाना ने हर चंद कोशिश की कि उसकी कुछ खातिर मदरात की जाए, उससे वापसी के लिए कराही फराहम किया जाए, मगर इस शख्स का कोई पता न चला कि मौलाना इसकी तकवा से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी तफसीर को इनके नाम से मालूम किया। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक लोगों के लिए जरिए हिदायत है, जो चाहे उससे अपना मकसद हासिल कर सकता है।